So welcome. Today we will start a new lesson, that is square and square root. Okay. So first of all we will see that what is the square of a number. Square. So when a number is multiplied by itself, then the result is called as square of that number. For example, suppose 3 is a number. When it is multiplied by itself, that is 3, then we get 9. So actually 9 is the square of that number 3. Okay. Similarly, if let's suppose 5 is a number and then it is multiplied by itself, that is 5, then we get a result that is 25. तो 25 जो क्या बोला जाएगा, that is the square of that number 5. Okay. ये हो गया स्क्वायर किसको कहते हैं सबसे पहली बात. Okay. अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर. What is a perfect square number? Okay. So a number is said to be a perfect square number when it is the square of a natural number. Okay. When it is the square of a natural number. Suppose 36. Is it a perfect square number or not? Definitely it is a perfect square number because it is the square of 6. Similarly, if you say about 25, is it a perfect square number or not? So definitely it is a perfect square number because we can write 25 as 5 square. Okay. So perfect square number is that number which can be written as the square of a natural number, right? So we call them a perfect square number. So how to check a number is perfect square number or not? तो इसको लेके कई सारे मेथड्स हैं, हम लोग बारी बारी इसको देखते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So first method is prime factorization method. Prime factorization method. Okay. What is this method? Suppose we have to check that 35 is a perfect square number or not. So what we have to do? We have to factorize that number. So in case of 35, we can divide it by 5. 5 7 is 35, 7 7 1 is 7. So 35 can be written as 5 into 7. Okay. So here we see that there is nothing a pair of 5 or 7. So 35 is not a perfect square number. Okay. 35 is not a perfect square number. In case of 36, let's check 36 is a perfect square number or not. So what we do? We divide it by 2. Okay. It is 18. Next we again divide by 2, that is 9. We again divide by 3, that is 3. We again divide by 3, that is 1. So 36 can be written as 2 into 2 into 3 into 3. Here we see that there is a pair of 2 and there is a pair of 3. So in case of a perfect square number, we will get the factor of, okay, we will get two factors that will lie in a pair. Okay. So here is 2 and 3. That 6 is a number square of which is 36. So we can say that 36 is a perfect square number, right? Now we will see another method to check whether a given number is perfect square number or not. So here first of all we will write the square of numbers from 11 to 30. 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is equal to 225, 16 square is equal to 256, 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 324, 19 square is equal to 361, and 20 square is equal to 400. Similarly, you have to write the square of numbers from 21 to 30. Okay. So this is your homework. You have to write this. What I am trying to say that at the unit place of every perfect square number, you will get either 1, either 4, either 9, either 6, either 5, and then this either 0, and this number will repeat again. Okay. So what can be at the unit digit of a perfect square number?
दैट नंबर कैन बी 0, 1, right, 4, 5, 6 and 9. Okay, so if we multiply, if we square any number, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 या 9, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। यानी क्या नहीं आ सकता? So unit digit of a perfect square number can either be 0, 1, 4, 5, 6 or 9. Okay, so if there is a number like 2, 7, 8 and 3 at the unit digit of any perfect square number, that means that number is not a perfect square number, right? Suppose we write a number, this is 1692552, and we have to check whether this number is a perfect square number or not. So what will you do? We check the unit digit of that number. Here we get 2, हमको यहाँ पे 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी 2 हो नहीं सकता, कभी 2 नहीं हो सकता, कभी 7 नहीं हो सकता, कभी 8 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये दिया गया नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी इस ऐसे जो भी नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 2 आए, 7 आए, 8 या 3 आए, तो इनको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, राइट? तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में या तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आना चाहिए, और ये ऐसे नंबर्स हैं जो नहीं आ सकते। तो आपको एक्चुअली रिमेंबर बस यही रखना है, ओके, कि किसी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में या किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे आपको 2, 7, 8 या 3 मिलता है, इसका मतलब वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, राइट? अब चलिए थर्ड मेथड को देखते हैं। ये चल भी नहीं रहा सही से, ओके। सो अब हम ये इसको चेक करते हैं कि क्या अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उनके नंबर को देख के हम बता पाएंगे कि ये दिया गया नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है? सपोज अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, ठीक है, तो दैट नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पे भी कंफर्म नहीं है, बट ये प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ऑड हो, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसका मतलब ये कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, चलिए इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में हमको देखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस यानी 2 0, 4 0, 6 0 ऐसे हैं और इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर हो सकता है, दैट इज नॉट क्लियर, बट हो सकता है, ओके। बट अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं यानी 1 है, 3 है, 5 है, तो नंबर कभी भी परफेक्ट का नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 1000, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कैन में नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरोस हैं और 3 क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा कभी परफेक्ट का नंबर नहीं हो सकता, राइट? इसके अलावा सपोज मान लो हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ जीरोस है यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 एक हमारा इवन नंबर होता है। इवन नंबर कैसे कहते हैं? जिसमें 2 से डिवाइड चला जाता है, यानी हमारा एक जो नंबर ऑफ जीरोस 4 है वो एक इवन नंबर है, तब ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्चुअली ये है 100 का स्क्वायर है ये, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस हम देखें कि वहां पे ऑड है यानी 3 है, 5 है, 7 है, तो इस केस में तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चेक करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल, इससे सपोज यहाँ पे हम लिखते रहे 5000 50,000 लिख देते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आर इवन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इन केस अगर वहां पे नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो नंबर हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से हम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमने आपको ये बताई कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करते हैं, उसमें हम उसका फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर, उसके बाद हम देखेंगे कि किस नंबर का पेयर बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है। इन केस के अगर नंबर ऑफ जो पेयर हम नहीं बन पा रहे हैं तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और पेयर बन पा रहा है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। सेकेंडली हमने देखा कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, ओके, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आपका अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो नंबर हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, राइट।
तो और थर्ड केस हमने देखा नंबर ऑफ जीरोस के बेसिस पे कि अगर वहां पे नंबर ऑफ जीरो ऑड है यानी 3 है 5 है 7 है 9 है तो वहां पे वो नंबर कभी पर इसका नंबर नहीं हो सकता। और इन केस अगर वहां पे नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो नंबर हमारा पर इसका नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नोट्स देखते हैं। वी विल सी द सम इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सम इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें हमको करनी है इसके बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। सपोज अगर किसी भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, सो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ओके, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं देन वी विल गेट एन इवन नंबर। फॉर एग्जांपल suppose we know that 2 4 6 8 are even numbers, so if we square 2 we will get 4, it is again a even number. We square 4 we get 16, it is again a even number. So even square of an even number is always an even number. And similarly the case with odd number, the square of an odd number is always an odd number. Okay, तो अगर किसी भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली हमेशा ऑड नंबर आएगा। हम किसी का भी करके एग्जांपल चेक कर सकते हैं। सपोज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, इट इज अगेन एन ऑड नंबर। सपोज स्क्वायर ऑफ 5 वी गेट 25, इट इज अगेन स्क्वायर ऑड नंबर। तो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नोट हम लोग कर रहे हैं। सो सेकंड नंबर, here we will study later in the class 8 that a formula is a square minus b square is equal to a plus b and in other bracket a minus b। तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। तो इसका यूज हमको यहाँ पे एक्चुअली करना है। ओके, सो अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, राइट, सपोज 15 and 16, these are two consecutive numbers। consecutive numbers का मतलब होता है कि जो नंबर एक के बाद एक है, यानी एक ऐड करने पे जो नंबर आ जाए that is called consecutive numbers। so difference of two consecutive number is always equal to their sum। यानी अगर हमको इसका स्क्वायर का डिफरेंस लेना हो तो हम इन दोनों का सम कर लेंगे। अभी कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज अगर हम 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर करें तो एबव फॉर्मूले में हम रखें इसको, तो वी विल गेट 16 प्लस 15 इन वन ब्रैकेट, in other bracket we get 16 minus 15। तो 16 plus 15 that is 31 और 16 minus 15 that is 1। so in always in case of every number if we get we will take any two consecutive numbers then difference will be always 1, so the result will be always a plus b, यानी दोनों नंबर्स को हमको ऐड कर देना सिंपली। ओके, अब यहाँ पे हमको ये जरूरत नहीं है कि हम 16 का स्क्वायर 256 अलग से निकालें, फिर इसका 225 निकालें, फिर इनका डिफरेंस निकालें। ऐसा करने की जरूरत हमको नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम कर लेंगे और डिफरेंस तो ऑलरेडी हमेशा बनाना है, तो इन केस हमको क्या करना है, बस इन दोनों नंबर्स को प्लस करके आंसर दे देना है, राइट। तो सपोज मान ली हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, अगर मान ली हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो सिंपली आपको क्या करना है 17 प्लस 16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, simply we will add 26 plus 25 that is 51। तो इस तरीके से हमको आंसर करना। बट अगर मान लो इन केस ऐसा आ जाए 26 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, तब हम इसको यहाँ पे दोनों को ऐड करके नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो दोनों नंबर्स होने चाहिए कंसेक्यूटिव होना चाहिए, इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि दोनों नंबर्स क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तभी हम ये, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग एक और रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट नंबर 3। इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, सपोज बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड देन इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई का स्क्वायर करें, दैट इज 1 into दैट इज 2 का स्क्वायर, तो ये ऑलवेज हमेशा ये इस वाले नंबर से 1 अधिक यानी 3 के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसको और अच्छे समझते हैं। सपोज हमने कोई भी नंबर यहाँ पे ले लिया 2, राइट, 2 स्क्वायर प्लस अगर हम सपोज यहाँ पे ले रहे हैं 3 स्क्वायर, तो 2 into 3 कितना होगा यहाँ पे 2 into 3 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे जो नंबर आएगा ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही कर देंगे, यानी 2 into 3 plus 1 स्क्वायर। ये एक पैटर्न बनता है एक्चुअली, ठीक है। आप हर केस में देखेंगे इसको टेस्ट करेंगे तो हमेशा सही मिलेगा आपको।
तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस में हमारे एक्सरसाइज में दिए गए, इसीलिए हम इस रिजल्ट को पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक चेक भी कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 और हियर 3 स्क्वायर इज 9, 4 4 8 प्लस 9, 9 इक्वल टू 9 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो फार्मूला है एक्चुअली वेरीफाई हो रहा है। तो हमको करना क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है और प्लस उसी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर है, तो हमेशा तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। तो चलिए मैं कद और करते हैं, आप लोग इसके साथ में करिएगा। सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 5 इंटू 6 स्क्वायर, और यहाँ पे तब क्या होगा 5 इंटू 6 दैट इज 30, तो 30 से जस्ट 1 अधिक यानी 31 स्क्वायर। तो हमेशा एक पैटर्न हमको मिलेगा कि अगर हम 5 स्क्वायर करें, 6 स्क्वायर करें, कोई भी दो नंबर हम पहले ले लें और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर का स्क्वायर करें, तो हमेशा जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। क्लास 7 में हम लोगों ने देखा भी था। इस पर यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे 3 नंबर्स हमको लेने, सपोज हमने 3 नंबर्स कोई भी ले लिए ए बी एंड सी, तो अगर ये नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, इस फॉर्म में आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम सबसे पहले चूज करेंगे और उसके स्क्वायर को जो छोटे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल करेंगे, राइट। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 3, 4 एंड 5। हमको चेक करना है कि क्या वेदर दिस नंबर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को पिक करेंगे, दैट इज 5। देन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 15। So we will get 25 here and 25 here. That is left hand side is equal to right hand side. तब अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये सेटिस्फाई नंबर नहीं करते हैं तो दैट मीन्स दैट नंबर आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल कंडीशन बन जाती है, ओके। तो कोई भी अगर 3 नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होते हैं तो हमेशा वो एक फॉर्मेट में, एक फॉर्म में होते हैं। वो फॉर्म क्या होता है, वो हमेशा होंगे एक 2m नंबर होगा, एक होगा m स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स का एक जनरल फॉर्म होता है। हमेशा जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर होते हैं इसी फॉर्म में होते हैं, राइट। तो सपोज कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा इससे समझते हैं, हमको मान लो कि यहाँ पे 3 एंड 5 नहीं दिया गया, हमसे बोला गया कि 4 is the number, one of the number in the Pythagorean triplet, find the other 2 numbers, okay. So how will we find? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 2m से कंपेयर करेंगे। 2m is equal to 4, राइट। तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी 4/2, दैट इज 2। तो m is equal to 2, तो बाकी के जो दो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या क्या होंगे, एक तो हमने 2m से इसको कंपेयर कर लिया, अब बाकी के जो दो नंबर्स होंगे उनमें से एक होगा m स्क्वायर माइनस 1 एंड अदर नंबर विल बी m स्क्वायर प्लस 1। So in case of m square minus 1, we will get 2 square minus 1, that is 4 minus 1 and 3. Other number will be m square plus 1, that is 2 square plus 1, that is 5. तो हमने देखा कि अगर हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बस एक नंबर हमको पता था 4, तो हमने 3 और 5 बाकी दो नंबर्स को यहाँ से निकाल लिया। तो हम इस बात को हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स होंगे वो हमेशा इसी फॉर्म में होंगे, राइट। तो हम इसमें से प्रयास यही करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि हम इनसे कंपेयर करें। सबसे पहले इनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, इनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकेस अगर हम इनसे और इनसे कंपेयर करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, कोई नंबर हमारा बहुत इसका नंबर बन भी सकता है या डेसिमल में आ सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल चलिए इसको समझ भी लेते हैं। जैसे मान लो कि m स्क्वायर माइनस 1 को हमने कर दिया अगर 4 के इक्वल, देन वी विल गेट m स्क्वायर इक्वल टू 5, देन m की वैल्यू √5 आएगी, ये बस इसका नंबर होता नहीं है, तो हमको आगे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, 2m से। कोई भी नंबर का एक फॉर्म दिया होगा तो हम उसको 2m से कंपेयर करेंगे और देन बाकी दो नंबर्स वहां से निकालेंगे, ठीक है। सो हियर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज point number 5, if you note it, then what is it, okay. So here the point is, इस कंडम के लिए तो
सो लास्ट पॉइंट इज कि देयर इज सम नंबर्स, ओके, इफ देयर आर सम पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या, अगर वन नंबर इज 1 देन अदर इज 3 देन 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से सीरीज जाएगी. तो अगर इस तरीके के कभी हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे हों तो इनका सम पूछ दिया, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स. तो एक तो तरीका है मैनुअली हम इनको ऐड करें, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है. आपसे क्वेश्चन में बोला भी जाएगा कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो इसमें हमको करना क्या है कि जो भी नंबर्स हमारे सामने होंगे, सपोज कि हमने 9 तक नंबर्स लिए हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो आपसे बोला जाएगा फाइंड द सम विदाउट एडिंग दिस नंबर्स, यानी बिना ऐड करे हम इन नंबर्स को कैसे सम कर सकते हैं. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको इनको देख लेना है कितने नंबर्स हैं. सबसे पहला कंडीशन तो ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने नंबर से कहाँ तक, यानी 11 तक है तो कितना नंबर होगा, 13 तक है, 17 तक है, जहां तक है. सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 5. तो विदाउट एडिंग हम यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं कि इनका जो सम होगा दैट विल बी n², दैट इज 5² एंड आंसर विल बी 25. ओके, तो ये हमेशा एक पैटर्न आपको मिलेगा कि जब भी अगर ऐसे नंबर्स हो यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो तो उनको विदाउट ऐड करें हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को ऐड देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं, यानी 5 है 6 है 7 है, जितने भी हैं, और उनका स्क्वायर करके हम जस्ट इनका सम निकाल सकते हैं. राइट, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17. सपोज यहाँ तक हमको नंबर लेना है, तो इनको हमको ऐड करना है. बोला जाएगा क्वेश्चन विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स. So what will you do? We count these numbers. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, then value of n is 9. What will you do? Sum is equal to n², that is 9², that is 81. तो विदाउट एडिंग हम बता सकते हैं सारे का सम क्या होगा, 81 होगा. राइट, अब चलिए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को ऑफ करते हैं. एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. What will the unit digit in the square of the following numbers? बोला जा रहा है इन नंबर्स के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या हो सकता है. राइट, What will be the unit digit in the square of the following numbers? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 272 फॉर एग्जांपल दिया है. ओके, तो अगर इसका स्क्वायर करें तो हम लास्ट में क्या मिल रहा है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में कहीं ना कहीं हमको 4 मिलेगा. तो सारे नंबर्स का हमको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. हम अगर 2 होगा तो उसका स्क्वायर 4 आता है, केवल आपको यूनिट डिजिट को देख लेना है. राइट, तो इनकेस हमको मैं यहाँ पे 2 मिला है तो यहाँ पे 4 हो गया. अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा सपोज लिखा होता 163, तो 3 का अगर स्क्वायर आप करते तो लास्ट में 3 है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा. तो हमको डायरेक्टली आंसर करना है कि यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9 होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 4 होगा, ऐसे. ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जैसे सर यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर का क्वेश्चन 36 31 17. तो सबसे पहले जो हमने आपको चार्ट बताया कि आप 11 से 20 तक एंड 20 से 30 तक, यानी आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए. तो आपको अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का. 31 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 17 किसका स्क्वायर होता नहीं है. तो हम क्या बोल देंगे कि 36 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 31 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. राइट, तो इस तरीके से हम इनको चेक कर लेंगे. यहाँ पे हमको ये छोटे नंबर्स हैं तो इस केस में हमको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. और वैसे हम देखिए यहाँ पे 7 आपको दिख रहा है, तो 7 हमने बताया कि किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 7 हो नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा. बट ये छोटे जो नंबर्स हैं इनको हमको ऐसे नहीं डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, जो 2 डिजिट के हैं 3 डिजिट के. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे, छोटा है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगेन यहाँ पे जैसे 484 दिया हुआ है आपका, 167 दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे फिर नंबर है आपका 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन नंबर इज 5 6 7 8 3. तो नंबर्स को अगर हम देखें तो हमको पता है कि देखिए ये वाला जो नंबर होता है हमने आपको लिखवाया गया, ये 22 का स्क्वायर होता है. तो या तो आप डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए ये 484 22 का स्क्वायर होता है, या आप इसको क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके निकाल सकते हैं. ठीक है, 484 ऐसा लिख के फिर आप 2 से ले जाएंगे, 2 फिर 4 फिर 2. ओके, फिर 2 से 1 फिर 2 फिर 1 फिर 11 से फिर 11 टाइम्स फिर 11 से 1 टाइम्स. तो आप देखेंगे 2 का एक पेयर बन गया और 11 का एक पेयर बन गया. तो यहाँ पे जो नंबर होगा ये 2 × 2 × 11 × 11 ऐसे लिखा जा सकता है. यहाँ पे 11 का भी और 2 का भी पेयर है, इसका मतलब 484 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब इन सारे नंबर्स को देखिए ध्यान से. हमने क्या बताया आपको कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लास में
आपका 2 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता एंड 3 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 आ गया, इसका मतलब बफेट इसका नंबर नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पे 8 आ गया, बफेट इसका नंबर कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 आ गया, बफेट इसका नंबर हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इनको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां भी ये नंबर्स आपको लास्ट में दिख जाए यानी डेट में, तो आपको चेक कर लेना है कि बफेट इसका नंबर नहीं होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी चलो फॉलोइंग नंबर इज बफेट इसका नंबर, ऐसे ही आप लोग सिंपली इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क करेगा करिएगा इसको। इन द फॉलोइंग नंबर्स चूज द बफेट इसका नंबर, सेम वही है, फिर 36 20 8 64 19 27 81 दिया गया है। तो आप इसको देखिएगा कौन सा बफेट इसका नंबर है कौन सा नहीं है, राइट। ये आपका होमवर्क है। इन द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, ओके, और ऑड नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे भी जो पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, यानी जो भी इवन होंगे वो इवन के स्क्वायर होंगे, जो ऑड होंगे वो ऑड के स्क्वायर होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक आपको बता दें, जैसे 1296 है, दिस इज अ इवन नंबर क्योंकि लास्ट में आपको 6 दिख रहा है। तो लास्ट में अगर आपको 0 2 4 6 8 ये नंबर दिखे तो इसका मतलब वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये इवन का स्क्वायर होगा, राइट। अगर यहाँ पे कोई ऑड आता है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया, यहाँ पे दिया आपका 1 1 2 0 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका लास्ट में 1 है यानी ऑड है, तो ये किसी न किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। तो सिंपली यही आपसे पूछा गया है कि दिए गए जो भी आपके क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑड का स्क्वायर है कौन सा इवन का स्क्वायर है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इवन का स्क्वायर हमेशा इवन और ऑड का ऑड। इसका मतलब अगर इवन नंबर होगा तो इवन का स्क्वायर होगा, ऑड होगा तो ऑड का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो जो भी इसमें ऑड होंगे उन्हीं का स्क्वायर ऑड होगा। सेम नंबर सेम क्वेश्चन फिर पूछा गया, ओके। फिर बी वाला इन द फॉलोइंग नंबर्स स्क्वायर ऑफ व्हिच आर ऑड एंड स्क्वायर ऑफ व्हिच आर इवन। तो जो भी इवन होंगे उनका स्क्वायर इवन, ऑड होगा ऑड, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी हमने आपको फॉर्मेट बता दिया है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 33 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर और यहाँ पे ब्लैंक्स में हमको भरना है। हमने आपको अभी बताया कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर का आपको डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 33 प्लस 32 को ऐड कर देंगे आप, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यानी 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि दो के साथ चेक करने की पहली बात ये कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए और इनके स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ओके। क्योंकि हमने उस आइडेंटिटी में पुट करके देखा भी था कि इनका डिफरेंस तो ऑलरेडी 1 ही आएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसे सारे सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं। एक और भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया गया -314 स्क्वायर इक्वल टू 629। तो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया और यहाँ पे माइनस दिया गया, इस बात को ध्यान रखिए आप। तो अगर 314 का स्क्वायर है तो इसके पहले काउंट क्या आया होगा, इसके जस्ट पहले, यानी कंसेक्यूटिव नंबर में क्या आएगा इसके पहले 315 स्क्वायर। 315 स्क्वायर माइनस 314 स्क्वायर नंबर आ जाएगा 629, क्योंकि आप इन दोनों को अगर आप ऐड करें दैट इज 315 प्लस 314 तो आपको मिलेगा 629, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे 315। तो ऐसे इन सारे क्वेश्चन को करना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बोला गया है 45 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 100 प्लस वाट स्क्वायर। तो एक पैटर्न होता है, वैसे आप उसको याद रखें, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर, जैसे सपोज कि हमने लिखा है 25 का स्क्वायर करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 यानी सबसे पहले वाला जो 10 डिजिट होगा यानी जो भी सबसे पहले वाला नंबर होगा उसको हमको पिक करना है, और फिर इसके नेक्स्ट नंबर को यानी ठीक इसके अगले वाले कंसेक्यूटिव नंबर को पिक करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 100 और प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर। ये हमेशा इसी पैटर्न में नंबर आएगा। किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 हो तो, जैसे सपोज हमको 35 का स्क्वायर करना है, वैसे हमको 25 का स्क्वायर पता भी 625 होता है, हम चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा आया कि नहीं आया। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 100 दैट इज 600 और प्लस 25 वी विल गेट 625। वैसे सिमिलरली हमको मान लो 35 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है हमको, सिंपली इस नंबर को सबसे पहले वाले नंबर को पिक करेंगे 3 और इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा 4 फिर इंटू 100 और प्लस लास्ट में हमेशा ये 5 का ही स्क्वायर होगा, राइट, और कुछ नहीं हो सकता है। तो 3 4 जाओ 12 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1200 और प्लस 25 यानी आंसर विल बी 1225। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। यहाँ पे देखिए 45 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 5 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम 5 का स्क्वायर 25 होगा। वैसे ही और भी क्वेश्चन देंगे, एक आठ हम कर देते हैं आपको। जैसे सपोज की थर्ड डिजिट का एक नंबर है 125 स्क्वायर,
तो हमने क्या करना, लास्ट वाले डिजिट को पिक करना है, यानी 5 को छोड़ के जो भी नंबर से हमको पिक कर लेना। तो 12 हो जाएगा और 12 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13, और फिर इसमें हम करेंगे 175 और इस ब्रैकेट में 5 प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न यहाँ पे हर चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए ब्लैंक में क्या भरने के लिए बोला गया था, ये वाला पार्ट हमारा ब्लैंक था, ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 12। ओके, तो किसी भी नंबर के लिए आप ऐसे सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। 11 में है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ब्लैंक है, देन यहाँ पे पूछा गया मल्टीप्लाई स्क्वायर। तो अभी हमने आपको सेम पैटर्न एक बताया था कि अगर आपको किसी भी दो नंबर से 7 स्क्वायर है 8 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 7 into 8 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 7 8 या कितना होगा 56। तो यहाँ पे जस्ट एक बढ़ा के नंबर यानी 57 का स्क्वायर नंबर हमारा आएगा। इस पैटर्न में नंबर चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हम बढ़ देंगे 7 into 8 दैट इज 56। एक और कर देते हैं, जैसे सपोज कि 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्लैंक है स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बोला गया व्हाट 100 स्क्वायर। यहाँ पे दो हमको ब्लैंक भरने हैं, एक है 10 के स्क्वायर के बाद यहाँ पे और एक नेक्स्ट यहाँ पे। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो नंबर आता है लास्ट वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 110 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 11 होगा, तभी तो हम 10 to 11 करेंगे तो 110 आंसर आएगा। और यहाँ पे हमको पता है कि जो भी नंबर होता है इससे 1 प्लस करके होता है, यानी 111 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐसे हम फिगर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इनको आप कर लीजिएगा घर पे आराम से। जैसे सपोज यहाँ पे 2 2 3 दिया गया, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। अब क्या करेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है 9 और यहाँ पे 4 प्लस 4, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब इसका मतलब ये नंबर हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है क्वेश्चन आपका, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। वन मेंबर देखिए हमने आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में होंगे। यहाँ पे वन मेंबर दे दिया गया है, वन मेंबर ऑफ दैट ट्रिपलेट इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे इसको 2m से कंपेयर करेंगे, दैट इज 4, m इज इक्वल टू 2, देन अदर मेंबर्स विल बी other one will be m square plus 1 and m square minus 1. m square plus 1 means 2 square plus 1 that is 5 and m square minus 1 means 2 square minus 1 that is 3. तो दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे निकल जाएंगे 5 and 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर सारे वही रिपीटेड ही हैं। और द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट, इसका नंबर गिव रीजन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, इसको ध्यान से देखिए आप। बोला गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है क्यों ऐसे ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि जिस भी नंबर के लास्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 2 0, यहाँ पे ट्रिपल जीरो दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो आप क्या रीजन देंगे कि सिंस द नंबर ऑफ जीरोस एट द लास्ट प्लेसेस ऑफ दैट नंबर इज ऑड, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। यहाँ पे फिर दिया गया 2 2 2 2 ऐसे लिखा गया। तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में आपको 2 देखने को मिलता है तो हमेशा कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरीके से आप इनका आंसर करेंगे, राइट। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ना ही प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। डायरेक्टली जो हमने आपको नोट में लिखवाया था उन सारी चीजों को लिख के यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो 20 भी सेम ही है। 20 जैसे अभी हमने आपको बताया था 20 है। 20 का बोला गया है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। जैसे हमने आपको बताया था कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 सब कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, यानी दो के डिफरेंस पे आएंगे। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं एक्चुअली। 11 + 13 + 15 + 17 + 19 यहाँ तक दिया गया फर्स्ट एग्जांपल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको देखेंगे कितने नंबर्स हो रहे हैं, यानी कि वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सिंपली काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की वैल्यू आ गई 10, तो सम क्या हो जाएगा, सम इसका 10 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर यानी 100। तो ऐसे आप फाइंड कर लेंगे, यानी इनको हमको ऐड नहीं करना है, सिंपली क्या करना है नंबर को काउंट कर लेना, उनके स्क्वायर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा फिनिश होता है। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे आप लोग